Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. My name is Vandana, and we are doing Book 8 SST, and the name of the book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So, children, today we are going to start with chapter number 9 of Geography, and the name of the chapter is Human Resources. So, let's do this activity first. What human resources are applied for the following activities? अब यहाँ पे activities कुछ लोग कर रहे हैं. You have to write down the name of the human resources that are applied here. People engaged in any kind of useful activity are known as human resources. So वो लोग जो किसी भी तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उन्हें human resources कहा जाता है. Human resource is treated as a pivotal factor capable of determining the extent of growth achieved by any country or region. So ये जो human resource है इसे ट्रीट किया जाता है एक बहुत ही important factor के रूप में जो ज़रूरी है determine करने के लिए growth achieved by any country or region. Thus, resource development is closely associated with human development. इसलिए जो resource development है उसे human development से associate किया जाता है. In order to enhance the quality of human resources, good education and training for skill development are of vital importance. So, अगर हम चाहते हैं to enhance the quality of human resource की quality को improve करना, enhance करना, तो good education की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, training की ज़रूरत है ताकि skills को develop किया जा सके और वो एक बहुत ही important role play कर सके. Apart from food, clothing and shelter, इनके अलावा पढ़ाई, good education और training भी बहुत ज़्यादा important factor है. In India, the human resource development, which is HRD. So India में जो human resource development है, ministry जो है, has been specifically set up to ensure that our population receives the right education. So इनका काम क्या है? ये देखना है कि जो population है हमारी उन्हें सही education मिल पा रही है या नहीं. Skills, proper food, good health care to equip it for various departmental activities. So इन सारी activities के लिए जो proper facilities हैं वो मिल पाती हैं या नहीं. Japan's development from after World War II is a striking example of how human resource, skill and technology can work wonders in a land where few resources are present. So जापान की जो जापान में डेवलपमेंट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद is an striking example. ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी ने एक साथ मिल के जो है उस लैंड को बहुत ही ज़्यादा एक वंडरफुल लैंड बना दिया. where few resources are present, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची थी वहाँ पे जो है कितनी सारी चीज़ें आज उन्होंने establish कर दी. The US has lower density of population than many countries. So US जो है यहाँ पे काफ़ी कम population है बाकी countries. However, with excellent skills and knowledge, it has provided the stimulus of development. So काफ़ी सारे अच्छे excellent skills के साथ knowledge के साथ उसने काफ़ी ज़्यादा development achieve कर लिया. On the other hand, the dense population with fewer skills and expertise in many parts of Asia and Africa are still moving slowly, albeit it steadily on the path that will surely lead to development. लेकिन दूसरी जगह देखा जाए तो अगर जहाँ पे इन सारी जगहों पे जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग हैं जो स्किल्ड है, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसी जगह जो एशिया और अफ्रीका में जो रहने वाले हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लोली होता है. Distribution of population is the main factor. The term population distribution means the way people are spread on Earth's surface. So population distribution का मतलब है कि लोग कैसे Earth की surface पे कहाँ से कहाँ तक spread out है. Densely populated regions have favorable geographical condition. So सबसे ज़्यादा जो populated जगह है वहाँ का जो geographical condition है वो काफ़ी अच्छा रहता है. Such as availability of water, favorable landforms, suitable climate and soil. ये सारे factors रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे population काफ़ी ज़्यादा रहता है.
Other factors that attract dense population are economic factors such as mineral wealth, urbanization, infrastructural facilities and industrialization. और जो दूसरे factors हैं वो ये लिखे हुए हैं, ये भी factors important हैं, पर जो main factors है वो ये है. These there are also socio-cultural factors which religious and cultural significance. अब कुछ जो है सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जिसमें कुछ रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो जिसमें इनका कुछ कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंस पॉपुलेशन. मीन्स किसी भी जगह की पॉपुलेशन डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स पे. हियर यू कैन सी द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डेंसिटी, द एरियाज दैट आर पॉपुलेटेड. यू कैन सी 0 to 10 means this areas have less population. और यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इस एरिया में. Moderately people populated regions have between 11 to 20% per square kilometer. So यहाँ का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 11 से 20% होते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में. Some moderately populated regions are called Central USA, Western China, Southern Russia, Norway, Ukraine, Sweden, etc. So ये सारी जो जगह है ये moderately populated means यहाँ पे population कम है. Sparsely populated regions have less than 1% per square kilometer. अब जो sparsely populated है means वहाँ पे सबसे कम population है. Such places include the polar regions. Polar regions है यहाँ पे hot and cold desert and areas with high rainfall near the equatorial region. Factors influencing the distribution of population. क्या क्या factors हैं जो influence करते हैं? Geographical or physical factors. Population distribution is influenced by geographical factors which play an important role in determining the availability of natural resources in the place. So कुछ factors है जो help करते हैं, जो influence करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में. पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एज वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑलवेज डेवलप नियर सोर्सेज ऑफ वाटर. दस एरियाज हैविंग एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर आर डेंसली पॉपुलेटेड while arid regions like deserts are thinly populated. So यहाँ पे जो पहला फैक्टर है वो कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. एंड एज वी नो दैट वाटर इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. सो जहाँ पे भी सोर्सेस हैं वाटर के वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे कम सोर्स हैं वहाँ पे कम पॉपुलेशन है. जैसे कि डेजर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है. नाउ द नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म्स. The nature of landforms found in the particular region also influence population distribution. Plains attract a larger population. Can you give reason for this? Plateaus and mountain terrains are unfavorable. Can you reason why? Can you give reason why the northern plains of India support a huge population and why the plateaus of Ladakh is sparsely populated? सो अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो दूसरा फैक्टर है वो है लैंड फॉर्म. ये कहता है कि अगर प्लेन्स की बात की जाए तो वहाँ पे जो है ज़्यादा पॉपुलेशन होती है कंपेयर टू हिली और माउंटेन रेंजेस. सो अब जो है यहाँ पे जो प्लेट्यूज होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, वहाँ का जो कंडीशन होता है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है. वहाँ पे हाउस बिल्डिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है. प्लेन्स ऑफ इंडिया सपोर्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन. प्लेन्स जो है इंडिया के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. एंड जो प्लेट्यूज हैं जैसे कि लद्दाख, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फेवर्ड बाय मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन whereas harsh climate conditions are unfavorable for people to live and survive. Can you say why the continents of Europe is densely populated while Antarctica is totally unpopulated? So अब क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में. क्योंकि अगर किसी भी जगह की क्लाइमेट एकदम जो है मॉडरेट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, लेकिन हार्श क्लाइमेट रहेगा मीन्स बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी जगहों पे लोग कम रह पाते हैं. सो इसीलिए जो है यूरोप जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड है और अंटार्कटिका
कम पॉपुलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल। सॉइल इज नेसेसरी फॉर वेजिटेशन एंड फॉर ग्रोथ, ग्रोइंग फूड एंड फॉर पॉपुलेशन। अब सॉइल क्यों नेसेसरी है? क्योंकि हम अपना फूड इसमें हम ईजिली ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चरली रिच प्लेसेस सपोर्ट a dense population. For example, the Ganga Brahmaputra basin has rich and fertile soil and is a great agriculture importance. So soil भी एक important factor है जो help करता है in the distribution of population. अगर soil अच्छा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा population रहेगी, क्योंकि वहाँ पे vegetation जो है can grow very well, वहाँ पे agriculture जो है practice की जा सकती है। लेकिन अगर जो है सॉइल इज नॉट गुड तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। एंड वन एग्जांपल इज गिवन हियर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वहाँ पे जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इसके आसपास। नाउ द नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी हमने पढ़े थे जोग्राफिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। मिनरल डिपॉजिट्स, दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सो नेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स इज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सो मिनरल्स का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इंडस्ट्रीज ग्रो करने के लिए, विच अट्रैक्ट पॉपुलेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा जाएगी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। Find out the densely populated regions of North America, which is rich in mineral wealth. Now, let's learn about the industries. The growth and the development of industries attract people from the surrounding areas for settlement. So, ये जो growth है, development है industries का, वो क्या करता है? लोगों को attract करता है from the surrounding area. सेटलमेंट के लिए लोग यहाँ पे इन इंडस्ट्रीज़ के पास आके बस जाते हैं। द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन द परमानेंट बेसिस। सो ये जो इंडस्ट्रीज़ क्या करते हैं, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और ऑन अ परमानेंट बेसिस। टोक्यो रीजन्स इन जापान एंड कोलकाता रीजन इन इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सो जापान का जो टोक्यो है वहाँ पे और इंडिया का जो कोलकाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि ये लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। पीपल हैव सेटल्ड डाउन एट प्लेसेस लाइंग इन डिस्टेंट एरियाज। लोग आके जो बस चुके हैं ऐसी जगहों पे, मेनली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से लोग ऐसी जगहों पे आके बस जाते हैं। एंड रीजन्स with an adequate and efficient network of transport are generally thickly populated as it increases the economic activities. So ये जो areas हैं जहाँ पे अच्छे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो जो है पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है। नाउ रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स, अब कुछ रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि किस तरीके का पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगा। Some places have religious and cultural significance which attract people to settle there. Some places are socially secure and peaceful. People move away from places where there is social and political unrest. When the government wants to move people from densely populated areas to sparsely populated ones, they give incentives to motivate them to flock to such areas. So कुछ जगह ऐसी हैं जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस हैं जिसकी वजह से लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को शांति मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, इस वजह से वो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्हें सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं मिलता है। When the government wants the people to move from densely populated area to sparsely populated ones, they give incentives to motivate them to flock to such areas. अब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को बोलती है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ से आप जाके स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज तक पहुँचें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, लोगों को इंसेंटिव्स देना पड़ता है, मोटिव
ताकि लोग मोटिवेटेड फील करें और ऐसी जगहों पे जाके रहें। एन एग्जाम्पल इज नोएडा विच वॉज डेवलप्ड टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल बर्डन ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल बर्डन था, जिसकी वजह से जो है नोएडा है उससे जो डेवलप किया गया था, एंड टू अट्रैक्ट पीपल लिविंग इन दिल्ली टू एंड नियर बाई एरियाज टू सेटल डाउन हियर। अब लोगों को कहा गया कि दिल्ली से वो नोएडा की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि जो दिल्ली की पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाए। टुडे इट हैज़ बिकम अ डेंसली पॉपुलेटेड सिटी विच इज़ ग्रोइंग डे बाई डे। अब आज की डेट में आप देखोगे तो ये भी जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी बन चुका है जो आगे जाके और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। Composition of population. The population of a country or the density of population has no link with the level of economic development of that country. जो population है country का या जो density है population का, उसका कोई भी link नहीं है economic development से उस country के। For example, Japan and Bangladesh have the very high density of population. जापान और बांग्लादेश है, इसका जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी का है, बट जापान इज़ अ हाईली डेवलप्ड कंट्री वेल बांग्लादेश इज़ इक्वली बैकवर्ड। अब आप देख सकते हो कि दोनों की पॉपुलेशन सेम टू सेम है, लेकिन जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है, लेकिन बांग्लादेश कितना ज़्यादा बैकवर्ड है। दस इट इज़ नॉट द टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट मैटर। लोगों की जो क्वांटिटी है वो मैटर नहीं करती है, रादर दैन द क्वालिटी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। We get a better understanding about the people if we know about their age, sex, literacy level, health condition, occupation, income level, etc. So हम लोगों के बारे में हम उनको ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं अगर हम उनकी इन सारी चीज़ों को जानते हैं। The population composition refers to these factors about population. A simple way to learn about the population composition is by studying and analyzing the population or age sex pyramid. So आप इस पिरामिड को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं एज एंड सेक्स, बोथ आर रिटन हियर। सेक्स composition. One of the most important characteristic in the study of population of a place is the number of women and men in that place. So एक जगह पे कितने men और women है ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है। एंड द रेशियो और proportion between the number of women and the men in the given population is known as sex ratio, और जो इनके बीच में जो रेशियो होता है उसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। इन इंडिया इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। सो इंडिया में फीमेल्स को पर 1000 मेल से जो है कंपेयर किया जाता है। द सेक्स रेशियो ऑफ द कंट्री इन्फॉर्म्स अस ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द कंट्री। जो ये जो सेक्स रेशियो होता है किसी भी कंट्री का वो बताता है कि क्या स्टेटस है वुमेन का किसी भी कंट्री में। इन प्लेसेस वेयर देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द सेक्स रेशियो इज लो। जिन जगहों पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसी जगहों पे जो सेक्स रेशियो है वो कम होता है। कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान हैव लो सेक्स रेशियो। सो ऐसी इन सब कंट्रीज़ में जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम है। अमंग इंडियन स्टेट्स केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स टू 1000 मेल्स। सो जितने भी स्टेट्स हैं उसमें केरला में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है। एज स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स दैट फॉर्म अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर। जो लोग हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के वो पॉपुलेशन वो गिवन पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं उन्हें ही एज स्ट्रक्चर कहा जाता है। द एजेस 15 to 58 कॉन्स्टिट्यूट टू वर्किंग पॉपुलेशन। 15 से 58 को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। बिलो 15 इज अ यूथफुल पॉपुलेशन एंड अबव 60 इज एन एजिंग पॉपुलेशन। सो 15 से अगर बिलो है तो उसे यूथफुल पॉपुलेशन कहा जाता है और 60 ईयर्स से अबव है तो उसे एजिंग पॉपुलेशन कहा जाता है। इन योर ओपिनियन विच एज ग्रुप्स आर एसेट्स टू द नेशन। आपके हिसाब से कौन सा एज ग्रुप है जिसे एसेट कहा जा सकता है नेशन का। Which age group needs to be developed and which group requires more expenditure? कौन सा एज ग्रुप है जिसे ज़्यादा डेवलप करना चाहिए और कौन सा ग्रुप है
जिसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कौन सा ग्रुप है जिस पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज द लिटरेसी. द प्रपोर्शन ऑफ literate population in the country indicates its socio-economic condition. जो proportion है literate population का किसी भी country में, वो क्या करता है, वो indicate करता है socio-economic condition को, as it shows the standard of living, क्योंकि ये standard of living को बताता है. The level of literacy is dependent on the social status of women. जो लिटरेसी लेवल है वो डिपेंड करता है जो भी सोशल स्टेटस है वुमेन का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का. Unless the population is literate, a country's economic development cannot take place. In India, literacy rate is indicated by the percent of population which include people who are above 7 years of age who can both read and write with understanding in any language. So किसी भी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे, वो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा लिटरेट है. इंडिया में ये जो लिटरेसी रेट है उसे जो है 7 इयर्स से अबव अगर कोई भी पर्सन है उससे काउंट किया जाता है. 7 ईयर से कोई भी अबव कोई पर्सन है जो लिख और पढ़ दोनों सका है और किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है, तो ऐसा एक पर्सन लिटरेट पर्सन कहलाता है. Rural urban population. People living in villages make up the rural population of the country. So जो लोग विलेज में रहते हैं उन्हें रूरल पॉपुलेशन को वो कंसिस्ट करते हैं. These people are mainly associated with primary activities such as farming, fishing, raising livestock, etc. Nearly 3/4 of the India's population live in villages and makes up an agrarian society, which is why agriculture forms the backbone of our economy. On the other hand, people living in the cities form the urban population of the country. So जो लोग villages में रहते हैं वो rural population में आते हैं, और ये जो लोग हैं ये बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, इन्हें करते हैं. एंड नियरली जो 3/4 है इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है और अपना एग्रीकल्चर करके अपने नीड्स को फुलफिल करती है. सो इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है हमारा बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का. अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो लोग रहते हैं सिटीज़ में वो अर्बन पॉपुलेशन का एक पार्ट होते हैं. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. व्हेन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया इंक्रीज, इट इज़ नोन एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. जब एक एरिया में रहने वाले लोग अचानक से बढ़ जाते हैं तो कहते हैं हम कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है. पॉपुलेशन में ग्रो नेचुरली एज बर्थ रेट इंक्रीजेस. पॉपुलेशन जो है बढ़ जाता है जैसे ही बर्थ रेट इंक्रीज होता है और डेथ रेट डिक्रीज होता है. सो अब जो है ज़्यादा जो है बच्चे मीन्स बर्थ रेट जो है इंक्रीज होती जा रही है, मीन्स ज़्यादा जो है बर्थ हो रहे हैं और डेथ रेट डिक्रीज हो रही मीन्स कम लोगों की डेथ हो रही है. तो क्या होगा, ऐसे केस में पॉपुलेशन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. व्हाट डू यू थिंक कुड बी द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग बर्थ रेट एंड डिक्रीजिंग डेथ रेट? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस मे ऑलवेज ऑल्सो ग्रो ड्यू टू द माइग्रेशन. व्हेन पीपल लीव देयर ओन प्लेस ऑफ रेसिडेंस एंड सेटल इन अनदर प्लेस. सो पॉपुलेशन जो है किसी भी प्लेस की कैसे अकर करती है, कैसे ग्रो करती है, ड्यू टू माइग्रेशन की वजह से, जहाँ पे लोग क्या करते हैं अपनी जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते हैं. पॉपुलेशन चेंज मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड मे बी एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर यूजिंग परसेंटेज. सो जो पॉपुलेशन चेंज है वो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर इन्हें जो है एब्सोल्यूट नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है परसेंटेज के बेसिस पे. A negative change in population shows a decrease in population. अगर नेगेटिव चेंज है पॉपुलेशन में तो वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है डिक्रीज इन पॉपुलेशन. एंड अ पॉजिटिव चेंज शोज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और अगर एक कोई पॉजिटिव चेंज है तो वो इंक्रीज दिखाता है पॉपुलेशन में. कैन यू गिव रीजन फॉर द इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन? एंड पॉपुलेशन change may indicate the socio-economic development of or the historical and cultural development of a place.
जो पॉपुलेशन है वो दिखाता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या फिर जो हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है किसी भी प्लेस का. It is a matter of concern that the world's population has increased more than 10 times in the past 500 years. So ये जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10 टाइम्स बढ़ चुकी है 500 ईयर्स में. In the 20th century, it has increased 4 times and nearly 18 million people are added each year. और 20th सेंचुरी के बाद ये 4 टाइम्स बढ़ चुकी है और 80 मिलियन लोग जो है इसमें हर साल ऐड होते हैं. So you can see how rapidly the population is growing. Now let's do the question answer here. What does the term population distribution mean? Population distribution का क्या मतलब है? How does availability of water determine the distribution of population? So the availability of water determines the distribution of population because because the water is a basic necessity of life and people need water for their day-to-day use. That's why the people like to settle on those places where the water is available in plenty. Now name a densely populated state and sparsely populated state in India. You have to name them. What do you understand by the term sex ratio? What is the proportion of literate population in the country indicates? So जो proportion है literate population का किसी भी country में उसका क्या meaning है? What is migration? Migration means what? Shifting from one place to another in search of any of the means that we have learned in this chapter. Now discuss the geographical factors that influence the distribution of population. So कौन-कौन से geographical factors है जो influence करते हैं किसी भी जगह के population को? How do economic factors contribute to the distribution of population? So जो economic factors है वो कैसे contribute करते हैं population distribution के लिए? And what are the factors contributing to the growth of population? कौन-कौन से factors हैं जो contribute करते हैं population growth की तरफ? Explain the composition of population in India. India में population composition क्या है? That you have to write. Why do you think India has an unfavorable sex ratio? Why do you think? Because India has a unfavorable sex ratio because there is discrimination between the male and the female child. That's why this sex ratio is unfavorable in India. What is the reason of increase or decrease in population? Increase या फिर decrease का क्या reason होता है population के? So children, with this we have completed the chapter. I hope you have understood it and you have to complete the exercises that is given to you as homework. For that, read the chapter again. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.